آج ہم ایک بڑے دلچسپ سوال پر بات کر رہے ہیں۔ کیا واقعی گہرائی میں ڈوب کر کام کرنا یعنی ڈیپ ورک ہماری زندگی کو زیادہ بہمانی بنا سکتا ہے؟ ہاں، اور یہ سوال آج کل بہت اہم ہے۔ بالکل۔ ہمارے پاس کیل نیوپورٹ کی کتاب ڈیپ ورک کا ایک باب ہے جو خاص اسی موضوع پر ہے۔ اچھا۔ تو اکثر جب ہم سوچتے ہیں نا بامانی کام، تو ذہن میں آتا ہے کوئی ہنر والا کام، جیسے لکڑی کا کام یا لوہار کا کام۔ ہاں، جیسے کتاب میں رک فریر کی مثال ہے، وہ کاریگر۔ وہی، لیکن کیا یہ بات آج کل کے جسے نالج ورک کہتے ہیں اس پر بھی لاگو ہوتی ہے؟ مطلب کمپیوٹر پہ بیٹھ کے سوچنے والا کام؟ یہی تو اصل سوال ہے، کیونکہ نالج ورک میں اکثر چیزیں وہ واضح نہیں ہوتی۔ صحیح۔ اور اتنی خلفشار ہوتی ہے، ای میلز، میٹنگز، سوشل میڈیا، لگتا ہے بس ہلکا پھلکا کام ہی جدیدیت ہے۔ بالکل، اس کاریگر کی دنیا سے الٹ جہاں سب کچھ صاف ہے۔ جی۔ تو آج ہم اسی کیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آخر کیوں یہ گہرا فوکسڈ کام، چاہے وہ کوڈنگ ہو یا لکھنا، ہمیں زیادہ اطمینان بخشتا ہے؟ کتاب میں 3 بڑی وجوہات ہیں: نیورولوجیکل، سائیکولوجیکل اور فلسافیکل۔ یعنی دماغی، نفسیاتی اور فلسفیانہ۔ ہاں، تو آئیے پہلے دماغ والی بات سے شروع کرتے ہیں۔ دماغ کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہمارا دماغ کیا کہتا ہے۔ کتاب میں ایک سائنس رائٹر ہیں ونیفریڈ گیلیگر۔ اچھا۔ انہیں کینسر کی تشخیص ہوئی تھی۔ ظاہر ہے بہت بری خبر تھی، لیکن اس تجربے نے انہیں وہ توجہ کی طاقت کے بارے میں کچھ سکھایا۔ یہ دلچسپ ہے، کیا سیکھا انہوں نے؟ گیلیگر نے یہ محسوس کیا کہ ہماری زندگی کیسی گزرتی ہے یہ صرف حالات پہ منحصر نہیں، بلکہ زیادہ اس بات پر کہ ہم اپنی توجہ کس چیز پر رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہر وقت بیماری کا سوچنے کے بجائے وہ زندگی کی اچھی چیزوں پر دھیان دیں گی۔ جیسے دوستوں سے ملنا، فلمیں دیکھنا، شام کو ایک اچھا سا ڈرنک پینا۔ اور کمال یہ ہوا کہ اس سوچ کی تبدیلی نے واقعی ان کے تجربے کو بدل دیا۔ مطلب اپنی حقیقت خود بنائی، توجہ سے۔ بالکل، اپنی توجہ کے ذریعے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ ہمارا دماغ جس چیز پر فوکس کرتا ہے وہی ہماری دنیا بن جاتی ہے۔ ایک اور محقق ہیں، باربرا فریڈرکسن۔ اچھا۔ وہ کہتی ہیں کہ جب کچھ برا ہو تو اس کے بعد ہم کس چیز پر توجہ دیتے ہیں یہ ہمارے مجموعی احساسات پر بہت اثر ڈالتا ہے۔ تو منفی کو بھی مثبت بنا سکتے ہیں؟ ایک طرح سے، مطلب اس کو نیا معنی دے کر اپنی توجہ کے ذریعے۔ وہ اسے جذباتی لیوریج پوائنٹس کہتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور تحقیق ہے اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی، لارا کرسٹینسن کی۔ انہوں نے MFRI اسکینز استعمال کیے۔ وہ دماغ کی تصویریں لینے والی مشین؟ جی۔ انہوں نے دیکھا کہ جو بزرگ افراد تھے ان کے دماغ منفی تصویروں پر کم رد عمل دکھاتے تھے، وہ مثبت چیزوں پر زیادہ توجہ دیتے تھے۔ اچھا۔ اور نتیجہ، وہ نوجوانوں سے زیادہ خوش تھے، حالانکہ ان کی زندگی میں مسائل شاید زیادہ ہوں، بس توجہ کو بہتر استعمال کرنا سیکھ لیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم ڈیپ ورک کرتے ہیں، مطلب گھنٹوں کسی اہم چیز پر توجہ لگاتے ہیں، ہاں، تو ہم اپنے دماغ کو سکھا رہے ہیں کہ یہ دنیا، یہ کام، یہ زندگی اہم ہے، بامانی ہے۔ بالکل۔ اور اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، بہت اہم۔ وہ کیا؟ جب آپ گہرے کام میں مصروف ہوتے ہیں نا، تو آپ کا دماغ ان چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پر توجہ نہیں دے پاتا۔ جیسے کتاب میں مثالیں ہیں، کوئی عجیب سی ای میل آ گئی، ریٹائرمنٹ کی فکر، میٹنگ کا مسئلہ، دفتر کی سیاست۔ ہاں، یہ چیزیں تو دماغ کھا جاتی ہیں۔ بالکل۔ جب دماغ ان چھوٹی منفی باتوں میں الجھا رہے تو پوری ذہنی دنیا ہی وہ تناؤ والی چھوٹی سی لگتی ہے۔ صحیح کہا۔ ونیفریڈ گیلیگر نے بھی کہا تھا، خالی ذہن شیطان کا کارخانہ ہے۔ سنا ہے یہ تو۔ مطلب جب توجہ کسی مثبت چیز پر نہ ہو تو وہ بھٹک کر منفی یا فضول باتوں میں اٹک جاتی ہے۔ اگر دن بکھرا ہوا ہے تو دماغ بھی بکھرا ہوا محسوس کرے گا۔ تو دماغی نقطہ نظر سے گہرائی میں توجہ مرکوز کرنا، یہ ہمیں معنی اور اطمینان دیتا ہے۔ جی، یہ ہمیں اہم چیزوں پر فوکس کرواتا ہے اور فضول پریشانیوں سے بچاتا ہے۔ تو جیسا گیلیگر نے کہا، میں ایک مرکوز زندگی گزاروں گی کیونکہ یہی بہترین قسم کی زندگی ہے۔ بالکل۔ نفسیات کیا کہتی ہے؟ اچھا، یہ تو ہوئی دماغ کی بات۔ توجہ مرکوز کرنے سے دنیا بہتر لگتی ہے، لیکن کیا اس مرکوز ہونے کے احساس میں خود کوئی خوشی ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے، اور یہاں پر ماہر نفسیات میہائی چکسنٹ میہائی کا کام بہت اہم ہے۔ چکسن میہائی
नाम थोड़ा मुश्किल है। हाँ, उन्होंने एक तरीका इस्तेमाल किया था, ESM कहते हैं उसे। ESM वो क्या है? तजुर्बा नमूना बंदी का तरीका। मतलब लोगों को पेजर या आजकल फोन ऐप समझ लें, वो दे देते थे। अच्छा। दिन में किसी भी वक्त वो बजता था और उन्हें फौरन लिखना होता था कि वो क्या कर रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं। ओह, जबरदस्त तरीका है। जी, हजारों लोगों पर ये तजुर्बात किए और नतीजा बहुत हैरानकुन निकला। क्या नतीजा? ज्यादातर लोग क्या समझते हैं कि आराम में छुट्टियों में ज्यादा खुशी है। हाँ बिल्कुल, टीवी देखते हुए, फारिग बैठे हुए। लेकिन चेक्स एंड बिहाइंड ने देखा कि लोग अक्सर काम के दौरान ज्यादा खुश होते हैं, खास तौर पर जब वो किसी मुश्किल काम में पूरी तरह मसरूफ हों। क्या? काम करते हुए ज्यादा खुशी, ये कैसे हो सकता है? हाँ, वजह ये है कि काम में अक्सर वाज़ेह मकसद होता है, पता होता है क्या करना है, फीडबैक मिलता है। सही। और हमारी सलाहियतें चैलेंज होती हैं। ये सब मिलकर एक खास ज़हनी कैफियत बनाते हैं। कौन सी कैफियत? जिसे चक एंड मिहाई ने फ्लो कहा है। फ्लो? बहाव? हाँ, वो हालत जब आप किसी काम में इतने मगन हो जाएं कि वक्त का, अपना अर्द-गिर्द का एहसास ना रहे, बस काम में बह रहे हों। समझ गया, जैसे कोई आर्टिस्ट पेंटिंग करते हुए खो जाता है। बिल्कुल। जबकि फारिग वक्त को मजेदार बनाने के लिए खुद कोशिश करनी पड़ती है, कोई दिलचस्प सरगर्मी ढूंढनी पड़ती है। ठीक। और ये फ्लो का तजर्बा सीधा सीधा गहरे काम से जुड़ा है। कैसे? वो सारी सरगर्मियां जो गहरे काम में आती हैं, प्रोग्रामिंग, लिखना, मसला हल करना, या वो लोहारी का काम, हाँ, ये सब फ्लो पैदा करने के लिए बेहतरीन है। उनमें डूब जाने का जो अमल है ना, वो खुद बहुत इत्मीनान बख्श है। तो मजा मंजिल से ज्यादा सफर में है। एक तरह से हाँ, इस गहराई में उतरने के अमल में। अच्छा, तो ये विनिफ्रेड गैलिगर की बात से थोड़ा मुख्तलिफ है। वो कह रही थी कि क्या देख रहे हैं वो अहम है। हाँ, तवज्जो का मवाद। और चेक सेंट मिहाई कह रहे हैं कि वो डूब जाने का एहसास अहम है। बिल्कुल, फ्लो का एहसास। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही गहराई की अहमियत बता रहे हैं। सही। और ये सिर्फ इस लम्हे की खुशी नहीं है। चेक सेंट मिहाई ने ये भी पाया कि जिन लोगों की जिंदगी में फ्लो ज्यादा होता है, वो मजमूई तौर पर ज्यादा मुतमईन होते हैं। ओह, यानी लंबी मुद्दत की खुशी। जी, तो अगर आप अपनी काम की जिंदगी ऐसे बनाएं कि ज्यादा वक्त गहरे काम और फ्लो में गुजरे, तो ये आपकी मजमूई खुशी के लिए बहुत अच्छा है। ये एक साबितशुदा रास्ता है। जबरदस्त। फलसफा क्या कहता है? द फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट। तो हमने दिमाग और नफ्सियात की बात कर ली। अब एक तीसरा और शायद सबसे गहरा पहलू, फलसफा। क्या गहरे काम में कोई ऐसी बात है जो वो रूह को छूती है? हाँ, क्या इसमें कोई बड़ा मकसद छुपा है? बिल्कुल। इसके लिए किताब दो फिलॉसफियों का जिक्र करती है, हुबर्ट राइस और शॉन डॉन स्केली। उनकी एक किताब है ऑल थिंग्स शाइनिंग। अच्छा। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जदीद दौर में, खास तौर पर रोशन ख्याली के बाद, जब फर्द की आज़ादी पर बहुत जोर दिया गया, हाँ, अकल और मंतिक पर, तो हमने अनजाने में दुनिया से तकद्दुस और मौरूसी माना का एहसास खो दिया। पहले माना मिलता था खुदा से, रिवायत से। अब फर्द को खुद ढूंढना पड़ता है। हाँ, और इस आज़ादी से एक खला पैदा हुआ है जिसे कभी कभी बेमानीवियत या नाहिलिज्म कहते हैं। ये एहसास के शायद किसी चीज का कोई मतलब ही नहीं, ये तो बड़ा चैलेंज है। तो इसका हल क्या है? ड्राइविस और कैली कहते हैं हल है दस्तकारी या कारीगरी में। कारीगरी में? जैसे वो लोहार? हाँ, वो एक पुराने जमाने के पहिया बनाने वाले की मिसाल देते हैं। वो सिर्फ लकड़ी काटता नहीं है, वो लकड़ी को समझता है, उसकी खूबियों को, खामियों को, और उसके साथ मिलकर काम करता है। वो लकड़ी में जो इम्कानात हैं उन्हें पहचानता और निखारता है। तो यहाँ नुक्ता ये है कि कारीगर माना खुद से बना नहीं रहा। नहीं, वो अपनी महारत, अपनी तवज्जो और उस मवाद की कदरदानी के जरिए उस माना को दरियाफ्त कर रहा है जो पहले से वहाँ है। वाह, मतलब माना बाहर है, काम में, हुनर में। जी, ये उसे एक नज़्म ज़ब्त देता है और इस बेमानवियत के एहसास से बचाता है। लेकिन क्या ये सिर्फ हाथ से काम करने वालों के लिए है? एक प्रोग्रामर क्या करे? ड्रेफिस और कैली कहते हैं बिल्कुल नहीं। कारीगरी सिर्फ दस्ती काम नहीं है, ये एक रवैया है, काम करने का तरीका है। अच्छा। कोई भी काम जिसमें महारत हो, तवज्जो हो और अपने मवाद की समझ हो, चाहे वो कोड हो, अल्फाज हो, डाटा हो, वो कारीगरी बन सकता है। जैसे किताब में वो कंप्यूटर प्रोग्रामर की मिसाल है जो अपने कोड को खूबसूरत कहता है। हाँ, सैंटियागो गोंजालेस जैसे कोई नज्म हो,
और एक मशहूर किताब है प्रैग्मैटिक प्रोग्रामर। उसमें तो प्रोग्रामर्स का मवाजना उन पुराने पत्थर तराशने वालों से किया गया है जो कैथीड्रल बनाते थे। वो मामूली पत्थर काटते हुए भी बड़े मकसद का सोचते थे। बिल्कुल। लेकिन लोग सोचते हैं मेरा काम तो मामूली है, फाइलें इधर उधर करनी है, इसमें क्या कारीगरी। ये आम ख्याल है, लेकिन ड्रेफिस और कैलही कहते हैं मायने काम की नोयत से इतना नहीं आता जितना काम करने के अंदाज से आता है। अंदाज से मतलब कैसे? आप कितनी महारत से, कितनी तवज्जो से, कितनी देखभाल से काम करते हैं। क्या आप बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप मेयार का ख्याल रखते हैं? एक लकड़ी का पहिया शायद खुद अजीम ना हो, लेकिन उसे बनाने का अमल अगर पूरी महारत से किया जाए तो वो अजीम हो सकता है। तो आला मुलाजमत नहीं, आला तरीक़ाकार चाहिए। बिल्कुल, काम करने का आला तरीका। और जाहिर है ये आला तरीक़ाकार, ये महारत, ये तवज्जो, इसके लिए तो गहरा काम लाजमी है। जी, उसके बगैर तो मुमकिन ही नहीं। आप ईमेल चेक करते हुए माहिर नहीं बन सकते। सही। तो फलसफियाना दलील ये है कि गहरा काम हमें, चाहे हम नॉलेज वर्कर ही हों, अपने काम को कारीगरी के जज्बे से करने का मौका देता है। ये मामूली काम को भी बामानी बना सकता है। हाँ, ये उसमें छुपे मानी को दरियाफ्त करने में मदद देता है। इसे मुकद्दस, इत्मीनान बख्श बना सकता है। इख्तिताम और गौर तलब नुक्ता। तो हमने 3 अलग अलग जावियों से देखा, दिमाग, नफ्सियात, फलसफा। और तीनों एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि गहराई में तवज्जो से किया गया काम सिर्फ पैदावारी नहीं, बल्कि ये जिंदगी को ज्यादा बामानी और इत्मीनान बख्श बनाता है। तो इस सब का खुलासा क्या हुआ? खुलासा ये कि गहरा काम सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं, ये हमारी इंसानी फितरत की एक गहरी जरूरत है। न्यूपोर्ट ने मजाक में कहा ना, होमो सेपियंस डिपेंसिस, वो इंसान जो गहराई में फलता फूलता है और सतहियत पर मुरझा जाता है। जी, जब हम गहराई में काम करते हैं तो काम सिर्फ मजबूरी नहीं रहता, वो अपनी सलाहियतों का इजहार बन जाता है, इत्मीनान का जरिया। वॉनिफ्रेड गैलेगर की बात फिर याद आ गई। मैं मरकूज जिंदगी गुजारूंगी क्योंकि ये बेहतरीन किस्म की जिंदगी है। बिल्कुल, एक गहरी जिंदगी ही शायद एक अच्छी जिंदगी है। सही। और आखिर में एक सवाल सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। अच्छा? जो किताब में बिराए रास्त तो नहीं, पर उसी गुफ्तगू से निकलता है। अगर माने उसमें है कि आप काम कैसे करते हैं, ना कि सिर्फ क्या करते हैं। हाँ। तो जरा सोचें, आपके अपने मौजूदा काम में, चाहे वो कितना ही आम क्यों ना लगे, क्या कोई ऐसी छिपी हुई महारत या पहलू है जिस पर अगर आप पूरी तवज्जो और कारीगरी के जज्बे से काम करें तो वो आपके लिए ज्यादा इत्मीनान और मायने ला सकता है? क्या रोजमर्रा के काम में भी कारीगरी हो सकती है? ये वाकई सोचने वाला सवाल है।